I'm Gautam Uswal, Vice President of TAI and host for this evening program. In this session, our focus is on family managed business. Today we have with us India's most eminent personality, Parimal Merchant from SP Jain Institute of Management and Research. I would like him to please come on the stage. Parimal Merchants is actively involved in MBA program for last 36 years and especially on family manager run business for 16 years. And the program has reached over more than 2,000 business family in the country. He's keep going to Pakistan every month to teach them harmony as well as a family run business. Sir, it's a pleasure to have you here. Thank you. मैं अभी इससे किसी से बात कर रहा था. He introduced me himself that I am entrepreneur. Then somebody other said entrepreneur. तो मैं बोला मैं थोड़ा डर गया हूँ क्योंकि ये entrepreneur में बहुत सुना. तो हम लोग तो ये सब ज़्यादा नहीं समझते हैं. हम लोग सिंपल फैमिली बिजनेस वाले लोग हैं. और बिजनेस में तो हमारा एक सिंपल नियम है भाई, कितना पैसा लगा कितना पैसा मिला. So this is how we are going to talk about crude business thing. तो अभी पहली बात तो मेरी थोड़ी इंट्रोडक्शन कर दूं. मेरा नाम है परिमल. परिमल का मतलब मालूम है आपको? परिमल मतलब फ्रेग्रेंस ना. इंडिया की हर भाषा में परिमल का मतलब होता है फ्रेग्रेंस. अभी फ्रेग्रेंस का कमाल क्या होता है, जब बॉटल में बंद होता है तो पता नहीं चलता है, लगता है कि लिक्विड है. जब खुला और फैला तो पता चला कि सुगंध है. मेरा नाम ऐसा है, मेरा काम भी ऐसा है. आई वर्क फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस वर्ल्ड वाइड. वी प्रमोट दैट वन ऑफ द बिगेस्ट कर्स. 50 साल के बाद में जो जनरेशन होगा, दे आर गोइंग टू डिस्क्राइब माई जनरेशन. आई एम 53 year old. So my generation is the stupidest generation that ever existed on the earth. The reason is what? More than 50% of the resources of the humanity we deployed on something which humanity never needs. That is weapons. And more than 50% of the people are not getting food and health and education and whatever it is. And we said we created a word called management. Look how we manage our resources, that more than 50% are wasted and more than 50% are not needed. That is the generation which I belong to. I'm not very proud about that. So I work worldwide to promote peace and non-violence. That is the meaning of my name Parimal. अभी एक खाली राज की बात बता दूं. This is only called a way of introducing yourself so that आपका नाम कोई भूले नहीं जाए. See, ultimately in business, wherever we go, nobody has time for us. So if they are going to spend some time in few minutes, really you have to do something different. And what can I do different? Make waste out of anything that you have. So I am having a smallest office in this industrial estate. So to all the guests I am saying, you know, we are having the smallest office but doing very large business. Bajaj Plastic in Nagpur told us when we went to a factory visit, we were the first to come here in this industrial estate. मैं स्टूडेंट से बोल रहा था सेकंड होते तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता ना. But it sells. Burj Tower in Dubai, so much is the conspiracy going on. There is a company called EMR, there is a company called Nikhil. Okay, these people have completed Burj Tower, but top few meters they are not completing because there is another company which wants to make a taller tower than Burj Tower. Once they complete, then these people will complete it and say we are still tallest. सवाल ये क्या फर्क क्या पड़ता है. मैं गया शिकागो में, वहां पे वो बिल्डिंग में मुझे लेके गए ऊपर, and then the person who was introducing me, she told me this is the tallest building in this part of the hemisphere. कैसे भी करके एडजेक्टिव निकालो और जोर से बोलो, आज का जमाना है. I was in Jaipur yesterday, and the way your book is there, that gentleman is Jaipur Rugs. He is known worldwide for, and he is called and whatever it is, and he is very simple. And then I told him, आज का जमाना है ना, जो दिखता है वो बिकता है.
Today is not a time of giving the shoes which will last for 5 years. Nobody wants shoes for 5 years. फिर हम shopping क्या करेंगे? So the whole thing is that really speaking, we have to understand how business works. This is what is very important. Business के कुछ rules होते हैं. So one of the rule is that strong to the weak and weak to the strong. अगर दुनिया में जाके आपने बोला कि साहब मैं बहुत छोटा हूं, मुझे ऑर्डर दो ना, कोई ऑर्डर नहीं देगा. तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हमसे सीख सीख के कुछ भी करते रहते, फिर हम उनसे सीखते हैं. So one person is there from Mahua, is a small place in Gujarat, known for mandi for onions. So he is doing the onion dehydration business. फिर वो बेचता है, आर्मी को देता है, मैकडोनाल्ड को देता है, डोमिनोज को देता है. That's what he is doing. He did our course, और हमारे कोर्स में जो भी आते हैं ना, उनको एकदम पंख लग जाती है. तो now he wants to become global. तो अभी क्या करना चाहिए? फ्रांस में एग्जीबिशन है. So he goes to the exhibition. I will start exporting. अभी फ्रांस में जाके किसी को बोलो कि मैं इंडिया से ओनियन एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो कोई आपसे बात नहीं करता है. So what do you talk? अभी जो सेशन था ना, मैं थोड़ा थोड़ा सुना, लेकिन उसको मैं यूज करता हूं. You know, in India there is a boom of private equity. They are after, and you know, India is booming like anything. I am in onion business, and private equity people are saying you should become global. They want me to acquire a company in France. If you know any company which is to be acquired, do let me know. अभी मैनेजर आपको अंदर बुलाए, अभी आपसे अलग ढंग से बात करेगा. अभी मेरे पॉकेट में पैसा है कि नहीं कंपनी एक्वायर करने का कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये आदमी मेरी कंपनी एक्वायर कर सकता है, मतलब कितना बड़ा आदमी. तभी वो आपसे धंधे की बात करेगा. So we say like this, strong to the weak and weak to the strong. ये दुनिया का नियम है, particularly in business. और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कैसे पता चलता है? आई एम फ्रॉम बॉम्बे, इन बॉम्बे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अंधेरी, और जितना आपका हुबली का पॉपुलेशन है उतना अंधेरी का पॉपुलेशन. फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इज आवर बिग थिंग. सब लोग बाहर निकलते ना, तो ऐसे जैसे लगता है कि एक वेव आ गया दरिया का. एक आदमी छुरा लेके भाग रहा है, पीछे लोग भाग रहे, पकड़ो 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 पकड़ो. बॉम्बे की पब्लिक क्या करेगी? साइड में हटके उसको भागने की रास्ता देगी, क्योंकि हाथ में छुरा है ना. अभी चल भागते 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 रास्ते में पत्थर आया, वो गिर गया. अभी उसके हाथ में से छुरा निकल गया. अभी देखो उधर का एक भिखारी भी आके उसको झापट मार के जाएगा. सो आई विल टेल यू सम क्रूड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. हर बिजनेस में बोरिंग होती है, कभी कभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी लोन रिपेमेंट के लिए प्रॉब्लम भी होता है. जब भी लोन रिपेमेंट के लिए प्रॉब्लम है, तो कभी भी गाड़ी बेच के पैसा मत देना, क्योंकि जैसे ही आपने गाड़ी बेची, बाकी सब लोग समझे अरे ये प्रॉब्लम में सब लोग आ गए. और जिस दिन सब लोग पैसा मांगने आता है ना, तो कोई बैंक भी नहीं टिक सकती. हम कहां खोल. तो जब दिन लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तभी मर्सिडीज खरीदो. अभी हमारे स्टूडेंट को हम दूसरा चीज भी सिखाते हैं, वो भी समझ लें. Learn to impress others, but don't get impressed by others. अगर कोई गाड़ी मर्सिडीज में से उतरा, तो उसको ज्यादा क्रेडिट नहीं देने में. मजबूत पार्टी है, चलो लग रहा है, तो उसको ज्यादा ऐसा गलती नहीं करना. बिकॉज टुडे द होल वर्ल्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली. यू नो, आजकल दुनिया में एक वर्ड चल रहा है, CSR. CSR. कोई भी कंपनी का प्रेजेंटेशन होगा ना, उसमें 4 स्लाइड होगा CSR. हमने इधर 4 कंप्यूटर क्लास दिए हैं, हमने इधर इतना लोगों को हेल्प किया, हमने इतना ये किया. हम लोग बात करते थे इंडियन फैमिली को आप CSR सिखाते हो. यू नो, इन इंडिया एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज, एवरी हॉस्पिटल हैड टू कम फ्रॉम चैरिटी ओनली बाय लॉ. जब मैं स्कूल चलाता हूं, तो गवर्नमेंट सेज दैट यू कैन नॉट स्टार्ट एज अ कंपनी, इट हैज टू बी बाय चैरिटी ओनली. If I start a hospital, Apollo Hospital was the first one to start as a company. Till then, hospital means charity only. And Indian business people, what Indian business people? Indians are charitable by all means. बॉम्बे में स्लम्स बहुत है,
आप स्लम में चले जाइए, वहां पे एक मंदिर होगा, and that temple will be very well maintained, and the people of the slum who may not have enough money to eat, still they will do charity for the temple to make the temple look good. We have been always doing CSR. हमको CSR बताने की आपको जरूरत नहीं है. Now this is where comes a very very fundamental thing about family business. हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है कि anything via waste उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. जब यहाँ पे होते ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. कलकत्ता में एक सेंट था, वो लोगों को बोलता था भाई साहब भगवान का नाम लो. लोग बोलते उसमें कौन सी नई बात करते हो, तुमसे क्या सीखना, हमको मर्जी आएगी तभी लेंगे. तो nobody was listening to him. अभी फिर भी है तो इधर जिसको देखो उसको देखो बोलता रहता है भगवान का नाम लो. लोग उनसे तंग आ गए, लोगों ने उनको एक स्टीमर में बिठाया, अमेरिका भेज दिया. अरे वो तो अमेरिका पहुंच गए, नहीं किसी को जानते, कुछ नहीं करते, क्या करें. बाहर निकले, किसी को जानते नहीं, एक पेड़ के नीचे खड़े रहे, बस ऐसे गाना चालू कर दिया हरे राम हरे कृष्ण, और वहां से बन गया इस्कॉन. अभी जब इस्कॉन वहां से यहां आता है, देखो उसकी क्या डिमांड बढ़ जाए. हमारे बॉम्बे में डब्बा वाला पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं, किसी को उसकी इज्जत नहीं, कोई देखता भी नहीं था कि क्या है. एक फॉरेन का प्रोफेसर ने आके एक स्टेटमेंट दे दिया विच इज ड्रास्टिकली रॉन्ग. लेकिन जो एक बार उन्होंने बोल दिया, देखो अभी बॉम्बे के डब्बा वाला की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि अभी तो हर जगह पे उनको स्पीच देने के लिए बुलाते, वो भी थक गए, बोलते अभी 50,000 रुपया दो मैं आता हूं. इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, सुना है किसी ने डब्बा वाले का स्टेटमेंट क्या? 6 सिग्मा. 6 सिग्मा मतलब क्या सर, आपको मालूम है ना, 10 लाख में एक एरर. अभी अगर 10 लाख में एक एरर है ना, तो उसके लिए 10 लाख सैंपल टेस्ट करना पड़ता है. अगर आप बोलो 100 में एक एरर, तो 100 सैंपल लो, एक आया तो आप बोल सकते हो. लेकिन 10 लाख में एक एरर प्रूव करने के लिए आपको 10 लाख सैंपल लेना पड़े, तो ही बोल सकते हो कि 10 लाख में एक है. क्या वो प्रोफेसर ने 10 लाख लोगों का इंटरव्यू लिया क्या? इज इम्पॉसिबल. बट नो पर्सन विद इवन सिंपल ब्रेन इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ये 6 सिग्मा का मतलब क्या होता है? हम तो अभी फैशन चलिए, जो सुना बोलना चालू, आगे का नेक्स्ट लाइन को नहीं पूछ रहा है. एंड दैट इज द थिंग. सो वाया वेस्ट चल रहा है. तो एक तो आ गया हमारा डब्बा वाला, एक वो आ गया इस्कॉन. अभी हमारे यहाँ पे ना एक स्टूडेंट था, वो मैं उसको मिलने गया. मैं मिलने गया तो बोलते सर अभी मुझे जाना पड़ेगा. मैंने बोला नॉर्मली आई शुड से जाना पड़ेगा, तू बोल रहा है जाना पड़ेगा, है क्या? सर मुझे योगा के लिए जाना. अभी हमारी भारतीय विद्या भवन अंधेरी कैंपस में योग कुटीर है. हमारे यहाँ पे एक गुरुजी है, और हमारा कंपलसरी है स्टूडेंट को योग कुटीर में जाने. जब उनको कंपलसरी बोला हमने 1-2 बार, हम समझ गए कि ये तो लगता है इनको हम बहुत बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमने कंपलसरी वर्ड निकाल दिया, तो कोई जाता नहीं. वो योग कुटीर है, फ्री में मिलता है, तो कोई नहीं जाता है. वो गया यूएस और वहां से आया योगा बनके. देखो अभी उसका डिमांड कैसा है. मैंने ये स्टूडेंट को पूछा, अरे होता है योगा, उसमें क्या इतना? सर मैं फीस दे रहा हूं ना. कितनी फीस दे रहा है? 3,000 रुपया. अरे 3,000 रुपया महीने में क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर महीने का नहीं, पर आवर. आप योग बोलो. योग is a Gurumukhi Vidya which is supposed to be not sold anytime ever, is to be passed over from one to another. It cannot be commercialized. That is why it has become yoga. If it is yoga, no value. Yoga, 3,000 rupees per hour. And proudly telling people, you know, I am doing yoga. This is what it is. So we have learned everything via waste. उसमें थोड़ी बीमारी आ गई. Waste ने ऐसा बोलना चालू किया कि old man should leave the company, so that young men can come in. ये हमारे यहाँ नहीं था. तो जो भी अभी मॉडर्न एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो लोग कुछ मैजिकल वर्ड यूज करना चालू कर देते हैं. एक उनका वर्ड है प्रोफेशनलाइजेशन. ये क्या होता है नहीं पता सर, लेकिन हमें है ना, इफ यू वांट टू ग्रो वी हैव टू प्रोफेशनलाइज. बट व्हाट इज प्रोफेशनलाइजेशन? बस एमबीए लोगों को रखो, 2 लाख रुपया महीने का पगार रखिए. That is very good and that does our business very well because after all we are MBA school. हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं MBA बनने के लिए. हम लोगों को पूछते हैं भाई क्यों आते हो? सर MBA करना है. MBA करके क्या करोगे? नहीं अच्छी नौकरी मिलेगी. अच्छी नौकरी ऐसे दे देता हूँ, तो जरूरत नहीं है. So people are talking about MBA only as a license to get a job and
Then if they do MBA, they are called professional. घर के लोग हैं, they are not called professional. Whereas what I understand is, anybody who does his work with dedication is a professional, and family members of a family business are the most biggest and the best professional we can ever have. Then comes the idea of system and processes. हमारा एक स्टूडेंट गया नोसिल में मैनेजर का इंटरव्यू लेके बाहर निकल रहा था, रास्ते में एकदम कान पे कुछ लगा तो ऐसे करने लगा, तो साथ में उसके साथ में जो एस्कॉर्ट था वो बोला क्या हुआ, पता नहीं कुछ काटा, थोड़ा देखा तो पता चला मधुमक्खी ने काटा। बोलता है डोंट वरी, हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, आ जाओ। तो नोसिल में तो डॉक्टर रखना पड़ता है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी एंड व्हाट एवर इट इज दे कॉल इट। अभी वो डॉक्टर के पास में गया, उसने फॉर्म भरा लंबा, उनको क्या चीज की एलर्जी है, पहले क्या हुआ और क्या हुआ है और क्या हुआ, 15 फॉर्म भरा उसका। फिर डॉक्टर के पास में गया, उसने भी 10 सवाल पूछा, क्योंकि उनकी आईएसओ सिस्टम है, एज पर दैट विदाउट डूइंग दिस दे कांट इवन टच द पेशेंट। अभी ये सब हो गई, उसने बोला क्या मधुमक्खी काटा है, फिक्र मत कर ठीक हो जाएगा, चाहिए तो सोप्रामाइसिन लगा दे। प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ। अभी बोलता है आफ्टर 1 वीक यू मस्ट कम हियर एंड रिपोर्ट दैट इट हैज बिकम नॉर्मल। बोलता है मैं क्यों आऊं भाई 1 हफ्ते के बाद में, अरे भाई मेहरबानी कर, मेरी नौकरी का सवाल है, अगर तू आएगा नहीं तो इट विल अपीयर एज द केस इज स्टिल ओपन, तो टू क्लोज द केस यू हैव टू कम आफ्टर 3 वीक। इसको बोलते हैं सिस्टम एंड प्रोसेसेस। थोड़ा ये भी चालू करो ना लाइट दिखाने के लिए। हाँ, ये लाइट थोड़ा कम करना। हाँ, एनीवे all these are jokes. You have to take it with a pinch of salt, because the whole idea is that we have to realize that family businesses are a great institution, and whatever challenges we are facing in family businesses are very, very important to understand. But all said and done, the future of India is not in Walmart coming to India. Future of India is not going to be MNCs coming in operation. Future of India is going to be our family managed businesses. I go to Pakistan for 2 reasons. Most of the people say they tell them not to use guns. This is a mistaken impression we all have. In fact, what is Pakistan we don't even know. And how the situation is there we don't know. It is when only you go there, you realize that an average Pakistani has a very high regard for India. They think that India has grown so much. They believe that in India there are so many cities. They see in India there are so many industries. And they see that anywhere in the world they go, India and China people talk about, nobody talks about Pakistan. They look forward to India, that what can we learn from India. This is what it is. And I work with family businesses there, and I realize that family businesses in entire Asia share some similarity. So I'm going to share not only Indian but Asian family businesses. What is it that is going on? So first and foremost, family businesses are much talked about. So many seminars are going on. एक फैशन है, कभी भी सेमिनार होना है, किसी को बुला लो फैमिली बिजनेस के लिए बोलने के लिए, और फैमिली बिजनेस के लिए जो भी बोलने आएंगे वही वेस्टर्न का बुक पढ़ा है, और वेस्टर्न की बुक में क्या दिखाया, वो क्या लिखा है वो मैं ये दिखाता हूँ। कहाँ पॉइंट करूँ, यहाँ वहाँ ऊपर। ये जो ना पढ़ना मत, क्योंकि अलग अलग भाषा में लिखा है, लेकिन क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये IMD करके जो राइट एंड बॉटम पे दिखता है, IMD लोजान स्विट्जरलैंड की इंस्टीट्यूट है। दे क्लेम टू बी एक्सपर्ट इन फैमिली बिजनेस, और उनके प्रोफेसर दुनिया भर में जाके सेमिनार देते हैं, और हमारे इंडिया के भी बहुत सारे कंसल्टेंट वो सेमिनार अटेंड करते हैं, और वहां जो सुन के आए वो यहाँ हमको सुनाते हैं। ये स्लाइड में ये बोलते हैं हवेली की उम्र 60 साल। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट द बिजनेस, सेकंड जनरेशन कंसोलिडेट द बिजनेस, थर्ड जनरेशन क्लोजेस डाउन द बिजनेस। नाउ ही हैज डन द रिसर्च, और ये रिसर्च का भी क्या चीज है, मैं वही चीज रिसर्च में से दिखाता हूं जो मेरे काम की, जो उल्टा है ना वो मैं नहीं दिखाता। So whenever anybody quotes research, you must understand that he has quoted the research which will support his point of view. तो मैं भी ऐसा ही करने वाला हूं। तो my point of view is exactly opposite. My point of view is
Why family business? Non-family business also die. नेटस्केप में करके कंपनी आई, 1995 में पब्लिक इश्यू आया ना, दुनिया हिल गई। 2005 में तो नाम भी नहीं पता। ब्लैकबेरी करके क्या, RIM, क्या वैल्यूएशन, अभी कंपनी का नाम नहीं पता। नोकिया was such a great company, they started giving lecture on everything, how to manage, क्या सब ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या है, एक बार कोई ऊपर आ जाता है ना, तो they start feeling their authority on speaking everything. And now Nokia had to be sold out. This is called mortality in business. Is not only in family business, in all business there is a mortality. So as I tell you, I find out, मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पूरा कंप्यूटर उधर है, ओके। मेरी थियरी है, कंपनीज वर्ल्ड वाइड फेल, वर्ल्ड वाइड। लुक एट दिस, 1982 में एक बुक बनी, इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस, और ये बुक में हमको, मैं उस टाइम सब यंग मैनेजमेंट ट्रेनी था, तो सब हम लोगों को एक एक बुक दी जाती थी, पढ़ो कंपनी कैसे चलाती है, बेस्ट कंपनी की रिपोर्ट इसमें है, इस तरह से कंपनी चलानी चाहिए। हम लोगों ने तो बुक लेके रख दी, हमको तो उतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। 1992 में उसमें से जो भी कंपनी दिखाई थी, मेजोरिटी ऑफ द कंपनी है ही नहीं। 1/3 ऑफ द फॉर्च्यून है ना, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, 1970 में बेस्ट 500 कंपनी, 1/3 ऑफ देम वैनिश बाय 1983। ये सब फैमिली बिजनेस नहीं थे। आप क्यों उनको बार बार बोलते रहते हो फैमिली बिजनेस बंद हो जाते हैं? ऑल द बिजनेसेस कैन डाई बिकॉज एनवायरमेंट इज चेंजिंग, बट विद इन दैट फैमिली बिजनेस आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। कंपनीज फेल बट फैमिली बिजनेसेस आर बेटर सुटेड टू सर्वाइव। सुनील मित्तल धंधा कर रहा था इंपोर्टेड डीजल जनरेटिंग सेट का। उसके पहले जापान वाले इंडिया में डीजल जनरेटर बेचते थे एंड दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लिमिटेड यूज। सुनील मित्तल ने देखा इंडस्ट्री में क्यों, दिल्ली में तो इतना का पावर कट होता है, व्हाई कांट वी यूज इट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, एंड ही स्टार्टेड एंड सडनली द डिमांड बिकेम वेरी बिग। व्हेन डिमांड बिकेम वेरी बिग, 2-3 इंडियन कंपनीज starting to start manufacturing diesel generating set. How will they sell? So one government policy, import of diesel generating set banned. Sunil Mittal business becomes zero. He does not commit suicide. He goes out, goes to Taiwan, looks at something else, and then he starts making push button telephone. And then comes mobile and he gets into telecom. This is family businesses. एक जगह पे कुछ कर रहे ना, प्रॉब्लम आएगा तो हम दूसरी जगह से बाहर निकलेंगे। इसके लिए इसको बोलते हैं बीन बैग। बीन्स बैग देखा? एक जगह पे दबाओ तो दूसरी जगह बाहर निकलते हैं, उधर से दबाओ तो इधर से बाहर निकलते। This is family business. Is family business don't die. Family business may so much expand that they may split, but they don't die that easily. And then my convenient statistics, again पढ़ने की कोशिश मत करना, मैं खाली एक ही पॉइंट बताता हूँ। दुनिया भर में ऐसी रिसर्च हुई है that family businesses do better than non-family business. Selectively मुझे जो सूट होता है वो मैंने पिकअप करके यहाँ रखा है। ये दूसरा भी है, जो भी अच्छा है ना वो सब फैमिली बिजनेस। अभी मेन मतलब की बात आती है कि फैमिली बिजनेस में ऐसा क्या है, व्हाट इज इट डिफरेंट फॉर फैमिली बिजनेस देन नॉन फैमिली बिजनेस। आफ्टर ऑल जो सुनील मित्तल ने किया ना, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कुड हैव नेवर डन। केपी सिंह करके डीएलएफ के ओनर है, व्हाटएवर ही डिड एलएनटी कुड नेवर डू। एलएनटी के पास में इतनी कैपेसिटी है, इतने इंजीनियर्स है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, बट दे कैन नॉट क्रिएट गुड़गांव व्हिच ओनली केपी सिंह कैन डू। सो व्हाट फैमिली बिजनेसेस कैन डू, अदर कंपनीज कैन नॉट डू मच। इन फैक्ट आई हैव अ थियरी, देखो ये मेरा प्रोफेशनल हज़ार्ड है तो मुझे डिस्काउंट कर देना जब भी आपको करना है। 90% of the businesses in India are family businesses and the remaining 10% are dependent on family businesses for their front end and back end. नैनो, जब नैनो बोलते तो क्या नाम याद आता है? टाटा। उनके 200 वेंडर है ना, सब फैमिली बिजनेस वाले। 200 की 200 आज भी लॉस में काम कर रही है, होप चलो आगे कुछ सुधरेगा।
उनके 300 डिस्ट्रीब्यूटर है, सबके सब फैमिली बिजनेस वाले हैं, 3% मार्जिन पे काम करते हैं, होप कि चलो गाड़ी चलेगी। उनके जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर है सब फैमिली बिजनेस वाले हैं। नाउ लेट देम मैन्युफैक्चर देमसेल्फ, let them sell themselves, let them hire people, company will go bankrupt. Unilever सारा चीज वेंडर से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, 3% मार्जिन। यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर 3% पैसा पहले दो और खुद के लिए 24%। और फिर उनके मैनेजर क्या करेंगे, हम लोग मार्केटिंग करेंगे, आईपीएल की 1 सेकंड के लिए 10 लाख दे दिया, तुम्हारा कम पॉकेट का पैसा जाता है, हमारा पॉकेट से जाता है। तो वी कैन नॉट स्पेंड लाइक दिस द वे दे स्पेंड, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर लार्जली डिपेंड ऑन अस। तो फैमिली बिजनेस कैन बी बैश्ड बाय एवरीवन, बट अल्टीमेटली दे नीड अस। नाउ आई एम टेलिंग यू सीक्रेट, द सीक्रेट इज फैमिली बिजनेस इज आल्सो नीडेड। We also need Tata so that we can become their vendor, we can become their distributor. अगर टाटा ही नहीं है तो किसका वेंडर बनेंगे, किसका डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे? So ideally both need each other, but when I am talking about family business, then I will stress only one side. They need us, बाकी चुप। So there are 3 reasons. We'll go one by one. One thing is why family business are better. ये Sam Walton करके एक family businessman था, वॉलमार्ट बना दिया ना। क्या धंधा था, ग्रोसरी की दुकान। अभी ग्रोसरी की दुकान में करना क्या है, तो भाई मेरे से अच्छी कौन सी दुकान है, तो के मार्ट करके दुकान है, वो उससे अच्छी दुकान है। तो वो पूरा दिन के मार्ट में बैठा रहता है, देखता है ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और एक दिन उसने क्या किया, शाम को बंद होने का टाइम है, अंदर जाके छुप गया। उन्होंने शटर बंद कर दिया, पूरी रात अंदर बैठ के उसने स्टडी किया, ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये खाली ओनर कर सकता है, एम्प्लॉय नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। सैम वॉल्टन वाज गोइंग फॉर परचेजिंग। वो बोलता है देखो भाई एक प्रिंसिपल क्लियर है, जितने रुपए का परचेज है ना, आवर कॉस्ट ऑफ गोइंग एंड कमिंग एंड ऑल कैन नॉट एक्सीड 0.1% ऑफ द परचेजेस। तो अगर हम लोग इतना बड़ा परचेज करने जाते हैं तो वी कैन गो बाय इवन बिजनेस क्लास, लेकिन अगर छोटा परचेज है ना तो वी हैव टू गो बाय बस। This statement can be made only by the owner. It cannot be made by professional. आप में से कोई प्रोफेशनल होना तो बुरा मत बताना लगाना, क्योंकि मेरा काम जो फैमिली बिजनेस वाले ना उनका हौसला बढ़ाना, ये मेरा काम है। So I will make some jokes on professional. बॉम्बे से अहमदाबाद पेमेंट के लिए जाना है, फैमिली बिजनेस वाला क्या करेगा, ट्रेन में जाएगा, ओवरनाइट ट्रेन है, कोई रिश्तेदार ढूंढ लेंगे, उनके जगह जाके फ्रेश हो जाएंगे, दिन भर का काम खत्म करके रात की ट्रेन से वापस। हमारी कंपनी में मैनेजर क्या करेंगे, फ्लाइट से जाएंगे। फ्लाइट सुबह 5:50 की है, उसके लिए 3 बजे उठना पड़ता है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। प्रीवियस डे इवनिंग चले जाता, अभी प्रीवियस डे इवनिंग जाता हूं तो वेयर विल आई स्टे, आई एम एंटाइटल्ड टू 4-स्टार एकोमोडेशन। सो प्रीवियस डे उसके लिए टैक्सी आएगी, बॉम्बे में वहां पे लेने आएगी, एंड वो पब्लिक टैक्सी से नहीं जाएगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, उसमें ना आपको कैश देना पड़ता है, फिर क्लेम करना पड़ता है। उससे अच्छा वो हायर टैक्सी बिल कंपनी में भेज देगी। तो फ्रॉम एयरपोर्ट टू होटल जाने के लिए वो पब्लिक टैक्सी यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर एंटाइटल्ड। Now he ended up spending 40,000 rupees for going for collection of 50,000 rupees. In big companies nobody compare. हम फैमिली बिजनेस वाले ना बनिया बुद्धि लगाएंगे, तूने खर्चा कितना किया और फायदा क्या हुआ। Now when we ask like this, we are told कि you know you are interfering in everything. करेंगे ना भाई, पैसा हमारा है। So there is nothing wrong in interfering in everything. So that is what family business people do. They are known for very fast decision. इनका जो लोगों के साथ में रिलेशन है ना, वो लंबा रिलेशन है, दैट्स नॉट ट्रांजैक्शनल। चलो आज मेरा काम हो गया, खत्म हो गई बात। 2009 21,000 का इंडेक्स है। मेरा एक स्टूडेंट है, फैमिली बिजनेस वाला, शेयर ब्रोकर है। वो अपने क्लाइंट को बोलता है देखो ये इंडेक्स में पैसा नहीं लगा सकते,
उसी टाइम उसने फोन रखा, जो क्लाइंट था उसने, ये फैमिली बिजनेस वाला बोल रहा है ये इंडेक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसी टाइम HSBC का मैनेजर का फोन आता है, सर दिस द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इंडेक्स इज गोइंग टू टच 40,000। उसको बोलने में क्या जाता, आपने पैसा लगा दिया, उसको उसका ब्रोकरेज मिल गया, बाद में आपका पैसा डूबा, तब तक तो मैं दूसरी कंपनी। बट फैमिली बिजनेस पर्सन कैन नॉट डू दैट। I know that by telling you not to invest, I am losing brokerage. But I have to make sure that your interest is protected because I have a long-term relation. And this is something which is a very, very unique. Toyota, for a long period of time, was a family company. Okay? And they are saying that they will never in their life do reverse auction. Whereas American company will do reverse auction. अभी इसका मतलब क्या होता है? भाई आप मेरे लिए टायर बनाओ, ऐसा टोयोटा ने दूसरे को बोला, तुम भी धंधा चालू करो। अभी वो टायर बना रहा है, मैं टायर ले रहा हूं, उसने फैक्ट्री डाल दिया है, सब कर दिया। अभी अमेरिकन वाले ने क्या बोला, कंप्यूटर पे बोलो कौन सस्ता टायर देता है। अभी किसी और आदमी आ गया, उसने सस्ता टायर दिया, ऑर्डर कैंसिल, इधर ऑर्डर दे दिया। अभी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम। फैमिली बिजनेस वाले क्या करेंगे, दैट्स व्हाट टोयोटा विल डू। He will work with this tire company. I will send my engineer. We will work together how to reduce your cost so that you also make money and you pass on the saving to me. This comes a relation from family businesses. Second reason is that family businesses do counter cyclical. लोग बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए, तो फैमिली बिजनेस वाले करेंगे। कस्टमर को ना बोल सकते क्या, फैमिली बिजनेस वाले ना बोलेंगे कि अभी धंधा मत करना। यहाँ पे एक चीज क्या हुआ, अमरावती में एक बिजनेसमैन को मैं मिला, मैं बात कर रहा था कि भाई आपका फादर ने आपको क्या सिखाया। ही 65 ईयर ओल्ड, 4 भाई है, वो सबसे बड़ा है। उन्होंने बोला फादर कह के गए सबसे छोटा बन के रहेगा तो सबसे बड़ा बन पाएगा। समझ में, राइट? यू हैव टू लर्न टू गिव। मॉडर्न मैनेजमेंट क्या बोलता है, यू हैव टू लर्न टू टेक। फैमिली बिजनेस वाला बोलता है 1 रुपया छोड़ना सीखो। मॉडर्न मैनेजमेंट पूछता है क्यों छोड़ना चाहिए। फैमिली बिजनेस वाला बोलता है इवन इफ यू आर वर्किंग बेटर सो व्हाट, यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली। मॉडर्न मैनेजमेंट बोलता है मैं ज्यादा काम करता हूं तो मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। Now this is something modern management, and as I started with you, anything that is coming via waste, हम लोग तो उसके सामने झुक जाते हैं। And we don't realize that such a valuable thing that we have, we throw it out of the house. रक्षाबंधन इंडियन फेस्टिवल है ना, अमेरिका में नहीं है, तो मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं। ये क्या धागा बांधने से कोई रक्षण होता है क्या? But वैलेंटाइन डे everyone has to celebrate. मतलब क्या है वो भी नहीं मालूम है, लेकिन वैलेंटाइन डे फोन आता है लोगों का, कहीं से भी किसी का भी, हैप्पी वैलेंटाइन डे, क्योंकि वाया वेस्ट। दिवाली में पूजा होती है, क्या है सब पूजा होने से क्या होता है? 31 दिसंबर मतलब वी हैव टू सेलिब्रेट, वाया वेस्ट। एंड द सेम थिंग, माय प्रॉब्लम इज डू एवरीथिंग, बट हियर थिंग इज फैमिली वैल्यूज यू कैन नॉट हैव वाया वेस्ट। वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द वेस्ट, बट एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, दे हैव टू लर्न फ्रॉम अस। तो हम लोग छोड़ना सीखते हैं। अभी उन्होंने मुझे क्या बोला, अभी समझो किसी से 30 दिन के लिए पैसा चाहिए, उन्होंने मुझे और भी बताया उनके फादर ने उनको क्या सिखाया। किसी से 30 दिन के लिए पैसा चाहिए तो बोलो 45 दिन के लिए चाहिए, और हमेशा 1 दिन पहले उनके घर पे पहुंचा देना। आवर लैंडर शुड नेवर सी आवर हाउस। 30 दिन के लिए वी वांटेड, थोड़ा आगे पीछे हो गया, 35 दिन हो गया। अभी हम मैनेजमेंट वाले सिखाते हैं 15 दिन का ब्याज क्यों वेस्ट करने का, तो 30 दिन ही बोलो ना। 4-5 दिन आगे पीछे होगा तो रिक्वेस्ट कर देने का, थोड़ा 1-2 दिन में देता हूं, 1-2 दिन में देता हूं। अभी आप सोचो पिछले 20 साल से every lender, every time, whatever money they have lent, one day before the money is being given to them, what is their credit worthiness? वो बोलते हैं खड़े खड़े 100 करोड़ बोरो कर सकते हो। Now, modern management says
ब्याज का हिसाब लगाओ. Family business is learn to invest in relationship. This is the difference. And that is why I say, just having an MBA abroad is extremely dangerous for families. We must go abroad. We must do the MBA. But don't keep your brain there and come. Come with your brain and learn to see what is it good that we have to apply. Very good. And what is it good that we have which we must respect. Now what is it good that we have we must respect. So here it is. This is what we have. My father is better than me. I use smartphone. My father can't use smartphone. So we have got a mistaken impression that the younger generation is very smart because they use smartphone. Smartphone अगर really smart होते ना, then you will realize the value of previous generation. मुझे किसी ने बोला कि we have said that the elder people should retire. I said, what a stupid thing you are doing. Here is the one of the wisest resource. जिन्होंने 30-40 साल मेहनत किया है, जो रुपये की कीमत जानते हैं, आदमी की कीमत जानते हैं, अपॉर्चुनिटी की कीमत जानते हैं, is available to you free. आप बोलते हो वो रिटायर हो जाए and then we start searching and reinventing from zero. We have to learn very clearly. My father is better than me. There should be no doubt, no dispute. Now professors like us give a lot of lecture. We teach business. We teach how to make money. But we only teach. They have already made. Here is a person who has made money. जिन्होंने धूप छांव देखे. No, they have gone through the toughest time. I have yet to come across a businessman who was not almost extinction 3 times. And they have come out. And that is which is the real business wisdom. Business wisdom is not knowledge. Business wisdom is knowledge about guts. हिम्मत कैसे रखनी चाहिए. And I tell you, modern educated people, one of the things that they lack is that they don't have guts. They are coming on a ready-made platform. रेडीमेड पैसा चल रहा है, गाड़ी चालू है, चलते चलते कभी बंद हो गई ना, कभी नुकसान हो गया, they go straight into depression. This is real strength. So I would propose, my father is better than me, is to be taken without any question. There are reasons. Because it connects me with our old tradition. परंपरा and संस्कार. सबसे छोटा बन के रहेगा तो सबसे बड़ा बन पाएगा. ये दुनिया की कोई मैनेजमेंट स्कूल में नहीं है. But that father will only be able to tell. अपना भाई अपने से कमजोर है तो 1 रुपया उसको ज्यादा दे दो. अभी 1 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 रुपया जब आप छोड़ते हो ना तो पूरा रिलेशन में बहुत फर्क पड़ता है. पार्टीशन होता है, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है, 10-10 करोड़ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 लाख की चीज है, एक भाई बोलता है मुझे ये चाहिए, दूसरा बोलता है ये 1 लाख की नहीं है, 2 लाख की है. बस इसके ऊपर जो झगड़ा हुआ वो इतना बिटरनेस हुआ कि लाइफ टाइम एक दूसरे को देखेंगे नहीं. झगड़ा कभी करोड़ों के लिए नहीं होता है, वो तो सिंपल है हिसाब. झगड़ा 1 रुपये के लिए होता है. एंड फैमिली सेज लर्न टू गिव. अपने घर का मेंबर है, अपने से वीक है, तो इट इज आवर जॉब टू प्रोटेक्ट. इज नॉट ट्राई टू डिमांड दैट बिकॉज आई एम स्मार्टर आई शुड बी गेटिंग बेटर शेयर. Now this is the family system which only father can tell us. Now if you don't listen to father, you listen to the waste. Waste says you should give as per competence. So if you are more competent, you should get more money. देखिए अभी मेरा टाइम कम हो रहा है, अभी आप बोलो तो मैं थोड़ा बोलूं. एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 भाई धंधा कर रहे हैं. एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट दिन का 12 घंटा काम करता है. दूसरा है कॉमर्स ग्रेजुएट, धक्का मार के पास हुआ है.
दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। विड्रॉल दोनों का बराबर है, गाड़ी दोनों की बराबर है। अब ये बड़े भाई की जो डॉटर है उसका कल स्कूल में प्रोग्राम है। वो अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलो ना एक बार तो आए, ये प्रोग्राम के लिए मैंने बहुत एफर्ट किए, उनको बोलो ना एक बार तो आए। उसका मतलब क्या, पापा का रेपुटेशन है कभी आते नहीं। मम्मी ने बोला पापा को, ये देखो बेटी ने इतनी मेहनत की, बेचारी बोल रही है आओ तो अच्छा है। बोलते अरे आता हूं ना, क्या प्रॉब्लम है। कल सुबह 9 बजे जाने के लिए तैयार, 8:30 बजे तैयार, बस स्कूल के बाहर पहुंचे तभी देखा एक फोन बजा। फोन आया, अच्छा मैं अभी आता हूं, अच्छा तुम लोग जाओ मैं अभी फैक्ट्री में जाके आता हूं। एंड ही गोज एंड गॉन फॉर द डे। अभी शाम को जब घर पे आता है तो क्या सिनारियो होगा। हम लोग तुम्हारे पे बर्डन है ना, यू हेट अस राइट, you don't like us, you want to avoid us, that is why you are sitting in the office all the time. He says काम होता है, खाली आपको काम होता है, वो यंग को तो कोई काम नहीं होता है। धंधा तो दोनों कर रहे हैं, विड्रॉ तो दोनों कर रहे हैं, तो खाली आपको काम होता है। काम बांध छोड़ो, you don't like us, that is why you want to avoid us। तो यहां रह के क्या फायदा, उसके लिए मैं चलती हूं। क्या करेगा बेचारा, सीए और वो बीकॉम, घूमता रहता है पूरा दिन भर। And as per competence, CA has more competence. अभी हम लोग एनकरेज करते हैं, फैमिली में मीटिंग होनी चाहिए, अपना क्या बिजनेस है सबको मालूम पड़ना चाहिए, किस तरह से होता है क्या होता है। तो इनका बिजनेस है रोड बनाना, और टेंडर मिलता है इसके हिसाब से रोड बनाने का काम। द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गुड इन एग्जीक्यूशन, ही कीप्स वर्किंग 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 12 आवर्स अ डे। ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, वो करता रहता है। लेकिन रोड के कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते पता है? अगर 10 करोड़ का रोड का गवर्नमेंट का एस्टीमेट है तो आपको 8 करोड़ कोट करो, तो ही आपको काम मिलता है। और बाद में एक बार आपको काम मिल गया, बाद में आपको उसका एस्केलेशन लेना है, और आप 4 करोड़ का एस्केलेशन लोगे तो आपको 12 करोड़ मिलेगा। अपना धंधा ये एस्केलेशन लेने की कैपेसिटी में है। और ये काम, ये जो यंगर ब्रदर है ना, घूमता रहता है पूरा दिन भर, वो ये लोगों से घूमता रहता है, पीआर बनाता रहता है, उसके लिए उसको एस्केलेशन मिलता है। बिकॉज ऑफ हिम वी आर मेकिंग मनी, बिकॉज ऑफ द एल्डेस्ट वन वी कैन ओनली रन द शो। अभी ये जब वाइफ को पता चलता है, देन शी अंडरस्टैंड that competence does not necessarily mean only working in the office. Family business is 5 fingers. Each finger has different competence. And the fact कि business family का लड़का है या लड़की है, they both have some genius by themselves, maybe different type. Now the question is grooming them to one direction. But two brothers are generally never similar nature. एक अगर पढ़ने में अच्छा है, दूसरा घूमने में अच्छा है। एक अगर टेक्निकल में अच्छा है, दूसरा कमर्शियल में अच्छा है। एक अगर इंट्रोवर्ट है तो दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। Scientifically it has been proven that generally siblings are opposite to each other in nature, and because of this, when they work together, they make a strong team. When we start becoming arrogant, ये सब मैं करता हूँ, and then when we come out, we don't realize that different people play different roles. And it's very, very important to keep together. This is our family tradition which the father can tell us. Then there is another reason. Father and the son or daughter are in no competition. एक फादर का बिजनेस है स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लड़का शामत दावर का क्लास में जाता है, यंग है ना, कॉलेज में तो सब जाते हैं, वहां से कुछ सुन के आया, एक वीडियो एल्बम का बिजनेस है, 15 लाख लगाना है, 1 करोड़ में बिकेगा। फादर को बोलता है ये बिजनेस करने जैसा, ये क्या आप स्टील का फैब्रिकेशन करते रहते हो, 5% 10% मार्जिन के लिए इतने मजदूरी है, मैं ये लाइन में नहीं आने वाला हूं, मुझे तो करना है ऑडियो एल्बम। फादर बोलता है देखो भाई इतना इजी पैसा कहीं नहीं है, ये लाइन में कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम है, ये लाइन अपनी नहीं है, तू फैब्रिकेशन में आ गया। लड़का बोलता है नहीं 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 आप मुझे करने नहीं देते हो, ये वो है। अभी फादर ने 15 लाख दिया,
What is the secret prayer of the father? He should fail. अगर वो सक्सेस हो गया तो लाइफ टाइम फादर को सुनाएगा, देखो आप ना बोलते थे ना। और अगर वो फेल हुआ तो फादर उसको लाइफ टाइम सुना सकते हैं, देखो मैंने बोला था ना, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। Is father and son competing? They are not competing, but one thing they have missed out. In a good family, one of the practices, nobody will ever use the word called I told you so. If I believe that this is not right, I will tell you. But then if you are going, we are going together. So it is not your failure, it is our failure. So in our family, the word I told you so is banned. Nobody will ever tell anybody that I told you so. Now then the father and son are the best team. I tell, in our program 3,000 families have gone through. We take the fathers in one room and हम पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है लाइफ में क्या हमसे तो जितना कर लिया ना हमने किया है. We had nothing and we have brought up to this. बस एक ही इच्छा है. My son or daughter should take this forward 10 times. Son और daughter को हम separate room में रखते हैं. उनको पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है. I don't want anything for myself. I have seen my father working so hard. बस मेरी एक ही इच्छा है. My father should be able to relax and enjoy the work result of whatever he has done lifetime. Both father and son deep inside are just well-wisher of each other, but outside they seem to be fighting with each other. The only thing is to understand that there is no conflict. Father is always well-wisher. अगर आपको ना बोलते तो argue मत करो उनके सामने, because he cannot give you reason, but he has a reason. Any businessman does anything always has a reason. But he is not a professor like me, so he cannot express. And fathers, when they went through business for last 30 years, till the son or daughter is grown up, in their lifetime not a single person has asked them a question, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? उनको लगा फैक्ट्री डालनी है, तो उन्होंने डाल दी. किसी ने पूछा नहीं कि क्यों डाल रहे हो. उनको लगा कि ये धंधा चालू करना है, उन्होंने कर दिया. किसी ने पूछा नहीं क्यों कर रहे हो. एंड अगर पूछते तो भी उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है. अगर वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसका मतलब नहीं कि उनके पास में रीजन नहीं है. They always have a reason, only thing is they can't explain. So father and son or daughter are not enemies, there is no conflict. And the third thing is our advice to fathers. Fathers have to learn that your job is to train the next generation. उसको अच्छी स्किल अच्छी कॉलेज में भेज दिया तो उसको एजुकेशन खत्म नहीं होता है. You have to teach them, बाहर से थप्पड़ भी मारना आना चाहिए और अंदर से सपोर्ट भी करना आना चाहिए. यहाँ पे हिंदी में लिखा है अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे चोट. 50,000 रुपया लेके गया कोई प्रॉब्लम नहीं, अकाउंट बताओ. You have to learn to keep account. You want to start something, okay, go and tell the bank manager and get approval done. Now the whole point is demanding accountability only father can do. 15 लाख लगाया धंधे में नुकसान हो गया, लड़का डिप्रेशन में, फादर उसको बोलता है अरे खड़ा हो, क्या डरते है इसमें, हमने भी नुकसान किया, तेरा तो कुछ नहीं है, तूने तो खाली 15 लाख नुकसान किया, मैंने तो बहुत ज्यादा नुकसान किया अभी तक. नुकसान नहीं करते हो ना तो धंधा नहीं बोलते, तो गवर्नमेंट सर्विस बोलते हैं. गवर्नमेंट सर्विस मतलब क्या, खाली इनकम आती है, कभी नुकसान का सवाल नहीं है. बिजनेस में नुकसान होता ही है. So one of the things that you have to learn is to make loss, and it's good that you have learned. One of the things that you have to learn is to fail in life, because the person who has not failed in life is a very, very unlucky person, because the first time the failure will come, he'll get into depression, because all along he has never failed, and all business people have failed in life. So encouraging our children to take advantage, to take a jump. If you fail, nothing wrong, we are there. And that is what we suggest that the elder generation should do. Elder generation should realize that you have an important role in the family. बच्चे पढ़ के आ गए तो खाली बाहरी दुनिया सीखे हैं, फैमिली वैल्यूज सिखाना आपका काम है. They have to teach digestion of wealth. वेल्थ अगर डाइजेशन नहीं होती है तो दिमाग में चली जाती है.
एंड दिमाग पे गई तो गया केस। आप बिजी हो धंधा करने में, आपने 100 करोड़ कमाया, अगर नेक्स्ट जनरेशन में पानी नहीं है ना तो ज्यादा नहीं टिकेगा। एक जमाने में बोलते थे कि इन्होंने इतना कमाया ना 7 पीढ़ी तक चलेगा। वो जमाना अलग था, उस टाइम MCX नहीं था। आज के जमाने में 100 करोड़ आप एक साल में खत्म कर सकते हो। सो अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन में पानी नहीं है, आप चाहे मेहनत कर करके मर जाओ, ज्यादा नहीं टिकने वाला है। ऑन द अदर हैंड, इफ योर नेक्स्ट जनरेशन इज कैपेबल, इट डज नॉट नीड योर 100 करोड़। So why are you burning all your time only in making 100 crore? Spend some time in forming the next generation. Discuss with them business क्या है, इसमें क्या issues है, क्या चीज है, अपनी family की क्या system है. We have to learn to spend time father and son together. My advice to younger son and daughter is become driver of the father. So that उनकी बैग लेके उनकी कैबिन में जाओ, वहां बैठे रहो, जो भी करते सुनो, तभी डिस्टर्ब मत करो। फिर उनको कहीं जाना है, आप ही ड्राइव करो, so that and ask आपने वो हैंडल किया, क्या हैंडल किया, मुझे तो कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आता था, आपने क्या सोचा था, and he'll start explaining you what he had thought. Now if you are driving, there is no driver around, he will tell you all the inside outside thing to you. So the whole point is we have to learn. And now my last line, you have to learn yourself. You may be 60-year-old business person, so what? I have in my class students who are 75-year-old. Because the business you did was in another time. I was talking to one gentleman here. 15 years ago, if I had an agency of Tata Steel, nothing to worry about. आराम से 12 बजे दुकान पे जाओ, दुनिया में किसी को भी माल चाहिए ना, हमारे पास में आना ही पड़ेगा. So we made money just because we had agency of Tata Steel. Now Tata Steel is going directly. जहां पे खाली प्रॉब्लम है वहां पे हमको लेके जाओ. So trading what we made money, days have gone. Now new days have come. So we have to learn how to make money. मेरू कैब का नाम सुना है? कैसी कंपनी? बहुत अच्छी है ना? क्या टैक्सी है? 160 करोड़ का सेल, 45 करोड़ का लॉस. Accumulated losses of 160 crore. कंपनी बंद होनी चाहिए ना? नहीं होती है, उसको 150 करोड़ की फंडिंग मिलती है. इसने पागल कुत्ते ने काटा होगा कि जो ऐसी नुकसान करने वाली कंपनी को पैसा दे रहा है, ऐसा हमको लगेगा, बट उनको पागल कुत्ते ने नहीं काटा, हमको काटा है. Because this is the time today. You make a loss and you get a funding, because those who are giving funding is not looking at your loss today. They are looking at what you can earn. Make my trip get a valuation of 5,000 crore when they are not even making a profit of 5 crore. A company in India, pharma company, 300 crore sale is sold at 3,000 crore. ये सब हमारा जमाने की बात नहीं है. When we started business in 80s and 90s, to get a 10 lakh rupees loan, बैंक मैनेजर को सलाम करनी पड़ती है. And today हमारी स्टूडेंट की बात है, एक्चुअल स्टोरी. He wanted 10 lakh rupees loan. बैंक में गए, बैंक ने बोला भाई कोलेटरल देनी पड़ेगी. और हमारे फैमिली बिजनेस में एक बीमारी क्या है, घर के सब लोगों को डायरेक्टर बना देते हैं. We think that to be director is a virtue, is the most useless thing to become a director. But कार्ड पे डायरेक्टर लिखा ना, लोग इंप्रेस हो जाते हैं. बैंक वाले ने बोला सब डायरेक्टर को पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी. अंकल बोलते ये तेरा धंधा क्या है, मैं समझता नहीं हूँ, मैं पर्सनल गारंटी नहीं दूंगा, मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा. तो ये स्टूडेंट है, हम लोग तो बस स्टूडेंट है, हवा में कुछ भी बात कर सकते हैं. बात कर रहे हैं, नहीं देते तो कुछ नहीं. क्या करना चाहिए? फंड रेज करने के दूसरे क्या तरीके हैं? तो किसी ने बोला आईपीओ. चलो आईपीओ के लिए बात करते, क्या करना चाहिए? मर्चेंट बैंकर को जाके बात करनी चाहिए. हम तो गए. देखिए एक चीज होती है ना, धंधा करना है ना तो बेशरम बन जाना. अगर वो मर्चेंट बैंकर बोलते हैं कि 10 लाख के लिए आईपीओ होता है, क्या अक्ल होती है? अच्छा नहीं सर, तो कितने के लिए आईपीओ होता है? कम से कम 10 करोड़ के लिए. अच्छा चलो तो 10 करोड़ के लिए क्या करने का? उसने बोला नहीं, तुम्हारा बिजनेस है ना, ऐसा नहीं होगा. ये स्टेज पे अगर करना भी है ना तो पी फंडिंग है. चलो तो भाई पी के पास में गए. हमको क्या, कहां कुछ नुकसान है, हमें क्या कुछ नुकसान करना है. पी के पास में गए. पी ने बोला देखो भाई हम 10 लाख रुपया नहीं देते, हम खाली $10 मिलियन देते. तो अगर 50 करोड़ चाहिए तो लो. अब ये स्टूडेंट बोल रहे हैं हमको 10 लाख चाहिए, लोग बोल रहे हैं 50 करोड़, क्या करें? हमने प्लान बनाया 50 करोड़ का, पूरा अप्लाई कर दिया. लड़की का फादर का मुझे फोन आता है, ये तुम्हारे स्टूडेंट को समझाओ
ये सब हमारे स्टूडेंट के फादर है ना, मेरे बेटा नहीं बोलता है, तुम्हारा स्टूडेंट बोलता है। इतनी अक्ल रखे, जो कंपनी का 8 करोड़ टर्नओवर है ना, उसको कोई 50 करोड़ नहीं देता है। ये सब हवा में बात है, वेस्ट ऑफ टाइम है, बेटर डू सम वर्क। अभी मैं इन्वॉल्व में क्या बोलूं, बात आगे बढ़ती जा रही है। अभी बीइंग साइंड, टर्म शीट हो गई, फाइनलाइज हो गया, लीगल एग्रीमेंट इज बीइंग साइंड, वो दैट इज टू बी गॉन टू लॉयर फॉर चेकिंग। लॉयर की फीस है 5 लाख। अभी फादर का वापस फोन आया, अभी तक खाली टाइम बिगाड़ रहा था, अभी मेरा पैसा भी बिगाड़ रहा है। अभी जिस दिन बैंक में 50 करोड़ जमा हुआ, तभी मुझे फादर बोलते हैं, आज भी मेरी समझ में नहीं आता है कि जो कंपनी का टर्नओवर है 7 करोड़, उसमें कोई 50 करोड़ क्यों दे। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, बिकॉज व्हाट वी नो इज वर्ल्ड इज गॉन, टुडे द वर्ल्ड इज गॉन। सो दिस इज व्हाट इट इज। इन फैमिली बिजनेसेस we need to learn value of family. The two generations are the strongest link. The previous generation has a wisdom, they understand money, they understand people, they understand opportunity, they understand risk. The younger generation has a dynamism. If they complement, they make a strong team. If they don't, they make a strong conflict. Thank you very much. Thank you very much. It was most exciting, interesting topic of the day, and I'm sure by coming here, many families which were thinking that family business is not good and they try to divide. I'm sure the family will not divide now. Very good. Thank you. And somebody had well said, I read somewhere, the joint family is assets and it is liabilities, the way you run it. So it is to parent and the children, let's go together and make it assets. Thank you very much. We have a very less time. Only one question from the audience. Sir, I know that your session there will at least 50 questions. So we'll close with one. Oh, you understood everything. Yeah. I just want to know, like, mine is a family business since 35 years. We are into trading of oil, and it's always like, you know, my wavelength doesn't match with my dad. So I thought of starting a different business. So can I connect this with a family business? ये देखिए, अगर किसी की वेवलेंथ डैड से मैच होती है ना, तो प्रॉब्लम है। It should not match, because if in a committee there are 5 people who all agree to the same thing, then 5 people are not required. It should be sharing and bringing different perspective. Now इनका प्रॉब्लम क्या है, मैं उनके बदले में बोल देता हूँ। वो जो भी प्रपोजल लेके जाते हैं ना, फादर रिजेक्ट कर देते हैं। बस ये इसी को नॉन मैचिंग बोलते हैं। The only thing is, the father is a very shrewd businessman. He understands what you are telling. He knows कि इसमें कुछ दम नहीं है। So the best thing to do is quality control. The best inspector is father. If you can convince the customer to buy the product, if you are going to convince a PE investor to invest in your company, if you are going to convince the bank manager to give you the loan, why can't you convince the father? Thank you. I would like to recognize the presence of a good friend and MLA of our area, Arvind Belat. Arvind, thanks for coming. Now I request host of the program, Satish Oswal, to please come on the stage and please present a token of appreciation to our guests. Thank you very much. I request our President Vivek to please come on the stage.